Hello friends, welcome back to our YouTube channel Let's Learn. As you know, we have finished positive and negative part of present indefinite tense. And I have got good response from you all. So thanks for your love and support. But guys, someone had query. So let me solve first this query. Now, there were two questions. First, what is object? And second one was, what is meant by main verb? So we'll write first this. What is object? Object means curve. Let me write formula. Subject plus main verb plus object. Now see, subject is called doer. हिंदी में उसे कहेंगे कर्ता. Okay? And main verb is called मुख्य क्रिया. Okay? मुख्य क्रिया and object is called कर्म. Let me write an example. I write a letter. Now you see, कर्ता के द्वारा जिस पर क्रिया होती है उसे कर्म कहते हैं. तो ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कर्म. यहाँ पर देखिए, I मीन सब्जेक्ट, राइट मेन वर्ब एंड अ लेटर इज ऑब्जेक्ट. तो देखिए, I के द्वारा लिखने की जो क्रिया हो रही है वो किस पर हो रही है? लेटर पर. यानी लिख रहा है पर क्या? तो लेटर. वन मोर एग्जाम्पल. I go to school. Okay, again I is doer means subject, यानी कर्ता. Go is the main verb and to school is called object. Okay guys, फिर से देखिए, I के द्वारा जाने की क्रिया हो रही है पर कहाँ? टू स्कूल. तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? स्कूल. यानी कर्म जिस पर क्रिया होती है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं. नाउ योर क्वेरी इज सॉल्व्ड. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज मेंट बाय मेन वर्ब? अब मेन वर्ब क्या है? नाउ यू कैन सी देयर आर टू मेन वर्ब्स. फर्स्ट राइट, and second one was go. Here. Now main verb is called first form of the verb. We have done three forms of verbs. First form, second form and third form. तो जो first form है उसे ही main verb कहते हैं. Okay? यानी मुख्य क्रिया. And it is used in present tense. Guys, I'll give you its link in description so you may see in detail. And one more thing, those who have subscribed now, so please watch all the videos so you can get full knowledge of everything. Okay guys, now we'll start our today's topic, interrogative. First tense is present tense. In that, first part is present indefinite tense or you can say simple present tense. Now third point is interrogative, यानी प्रश्नार्थक. अब हम इसमें प्रश्न पूछेंगे. But guys, just start interrogative on a fresh page. But don't write these two headings. Okay? Now formula of it: do, does plus subject plus main verb plus object and plus question mark. Now you have to put question mark because it's an interrogative. So it is compulsory to put question mark. Okay guys, don't forget it. Now your indication of Hindi sentences, क्या, ता, ती, ते, है या हैं and then question mark. Guys, you have to choose do or does according the subject. Let me explain with
I, you, we, they or any plural, you have to choose do. And with he, she, it or name of any single person, you have to use does. So here one example is written. क्या तुम पत्र लिखते हो? तो यहाँ पर देखिए इंडिकेशन क्या एंड ते, हो या है, कुछ भी आ सकता है. ओके गाइस, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं. नाउ तुम है तो हमें लेना होगा डू, यू, राइट, और लेटर एंड क्वेश्चन मार्क. ओके, देखिए यू है, सब्जेक्ट यू है, यहाँ पर देखिए यू, तो उसके साथ हम डू लेते हैं. ओके, तो डू यू, डू पहले आएगा. हाँ, डू यू राइट अ लेटर? नाउ हियर yes I do, and in negative no I don't. ध्यान दें कि जब हम पॉजिटिव में शॉर्ट आंसर देते हैं तो yes I do, सब्जेक्ट के बाद हम do या does लिख सकते हैं. और नेगेटिव का तो हमें पता ही है, नो के बाद डायरेक्ट हम I don't, he doesn't, इस तरह से हम लिखते हैं. ओके, पर अब पॉजिटिव फुल आंसर आप ध्यान दें. yes I write a letter. ओके, देखिए yes I write a letter, तो हमने जिस तरह से पॉजिटिव का सेशन किया था सेम हमें उसी तरह से यहाँ पर हमें आई है या यू वी दे है, तो हमें मेन वर्ब लेना है. ओके, तो आई राइट अ लेटर. नाउ हियर नो आई डोंट राइट अ लेटर. ओके, अब देखिए पॉजिटिव में हम मेन वर्ब लेते हैं और नेगेटिव में हम डू या डस के साथ नॉट लेते हैं. तो इधर आई सब्जेक्ट है, इसीलिए आई डोंट राइट अ लेटर. तो गाइस आप इस तरह से ध्यान दें, आगे हम और भी एग्जांपल्स लेंगे. ओके, नाउ सेकंड, क्या निधि जोविता मैम के लेक्चर में उपस्थित नहीं रहती? तो गाइस we can ask negative question also. So I have taken one. Now here, doesn't Nidhi attend Jovita ma'am's lecture? तो guys आप does या do के बाद डायरेक्टली नॉट ले सकते हैं, या फिर हम कभी कभी सब्जेक्ट के बाद भी लेते हैं. जैसे हम किसी को प्यार से पूछते हैं आर यू नॉट कमिंग विथ मी, तो भी देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट आया है, पर ये ग्रामेटिकली राइट है, तो हम इस वे में ही सीखेंगे. नाउ इन आंसर यस शी डज. देखिए यहाँ पर निधि के लिए शी लिया है और उसके साथ में हमने डज लगाया है. ओके, इन नेगेटिव नो शी डजंट. नाउ हियर पॉजिटिव फुल आंसर यस शी अटेंड्स जोविता मैम्स लेक्चर. तो जिस तरह से हमने पॉजिटिव सेशन किया था, देखिए यहाँ पर एस लगाया अटेंड में. ओके, हम शी के साथ एस और एस मेन वर्ब में लेते थे, तो यहाँ पर हमने एस लिया है. नो शी डजंट अटेंड जोविता मैम्स लेक्चर. ओके, यहाँ पर डज ऑलरेडी हमने ले लिया, उसमें नॉट लगाया, इसलिए यहाँ पर मेन वर्ब में एस और एस नहीं लगता है ही शी इट के साथ या कोई भी सिंगल पर्सन के साथ. पर बहुत लोग यहाँ पर डज लेने के बाद भी एस लगा देते हैं, तो आप ये गलती न करें. ओके गाइस, नाउ थर्ड, क्या आपकी बेटी अपने ससुराल वालों से अच्छा व्यवहार करती है? सो हियर डज योर डॉटर बिहेव वेल विथ हर इन लॉज, या फिर आप दूसरे वे में भी कह सकते हैं डज योर डॉटर ट्रीट हर इन लॉज वेल. तो हम सीक्वेंस में जा रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर बिहेव लिया है. वर्ब्स को आप देख सकते हैं. ओके, नाउ इन आंसर यस शी डज. ओके,
शॉर्ट आंसर हम इस तरह से डू या डस के साथ ही लेंगे, पर जब हम फुल आंसर करते हैं तब हम डू या डस नहीं लेते, पॉजिटिव, नेगेटिव में हम लगा सकते हैं। ओके, नाउ हियर नेगेटिव, नो शी डजंट। नाउ इन फुल आंसर पॉजिटिव, यस शी बिहेव्स। देखिए फिर से ऐसा आ गया, यस शी बिहेव्स वेल विथ हर इन लॉज। और अगर आपको इस वे में कहना है तो आप कह सकते हैं यस शी ट्रीट्स हर इन लॉज वेल। ओके गाइस, नाउ इन नेगेटिव, नो शी डजंट बिहेव वेल विथ हर इन लॉज। ओके, इतना आपको समझ में आया। अब जो मैं एग्जाम्पल्स लूंगी सिर्फ शॉर्ट आंसर लूंगी, पर आपको खुद फुल आंसर्स लिखने हैं। ओके गाइस। फोर्थ, क्या आप इस दलाल पर विश्वास करते हैं? देन इन इंग्लिश, डू यू बिलीव इन दिस ब्रोकर? आंसर इज यस आई डू एंड नो आई डोंट। गाइस यहाँ पर देखिए, आप है मीन्स यू पर क्वेश्चन है तो आंसर आई पे आएगा, बिकॉज समवन हैज आस्क्ड यू। ओके, नाउ यार फिफ्थ, क्या मीना लाइब्रेरी से पुस्तकें पढ़ने के लिए लाती है? सो इन इंग्लिश, डज मीना ब्रिंग बुक्स टू रीड फ्रॉम द लाइब्रेरी? आंसर इज यस शी डज, नो शी डजंट। नाउ नेक्स्ट, क्या श्रीमती आहूजा अपने लिए साड़ियां दादर मार्केट से खरीदती हैं? देन डज मिसेस आहूजा बाय साड़ीज फॉर हरसेल्फ फ्रॉम दादर मार्केट? नाउ सी, अपने लिए यहाँ पर आया है तो हरसेल्फ। ओके, अगर कोई लड़का है उसके लिए हम बोल रहे हैं खुद के लिए या अपने लिए तो हिमसेल्फ। कोई नॉन लिविंग थिंग्स होता है तो हम उसके लिए इटसेल्फ इस तरह से बोलते हैं। ओके, यहाँ पर डज मिसेस आहूजा बाय साड़ीज फॉर हरसेल्फ फ्रॉम दादर मार्केट? यस शी डज, नो शी डजंट। नाउ नेक्स्ट सेवेंथ, क्या यह कारीगर मजबूत घर बनाता है या फिर मजबूत घर का निर्माण करता है? यहाँ पर काव्य लिखने, घर का निर्माण करता है। देन डज दिस आर्टिसन, यू में से अदरवाइज मेसन, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग हाउस? यस ही डज, नो ही डजंट। ओके गाइस, नाउ एट्थ, क्या सच में वह हमेशा पैसे उधार मांगता है? हम कभी कभी कहते हैं ना कि क्या सच्ची में, क्या यह सच्चाई है कि वो पैसे उधार मांगता है? तो यह रियली, डज ही ऑलवेज बोरो मनी? तो यहाँ पर देखिए रियली के बाद मैंने यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लिया है, तो फिर डज का डी कैपिटल हो गया है। और अगर आप यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं ले रहे हैं तो आपका ये डी स्मॉल लेटर में हो जाएगा, बाकी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ सी, really does he always borrow money? Guys, as you can see there is no place, so I have written answer here. Yes he does, no he doesn't. Guys, this topic is finished over here, but you have to make 10 interrogative sentences based on next 10 verbs from 31 to 40. And if you have any doubt, please comment. और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह से टेंस आपको कोई भी नहीं सिखाएगा। और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। चलिए गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। ओके।